Hello students, I am Pushpanjali from CBSE English classes. Today I am going to teach you tense. First of all, what is tense and the kinds of tenses we are going to read in this video. So I will tell you about present tense, past tense, future tense, and all these three kinds are also having the four kinds that we will read in this video. So before watching my video, please subscribe my channel. Now see, what is tense? So we will see the definition of tenses. So tense is used to show the time at which the action of a verb takes place. So it is very important to understand what is tense. Tense means which shows the time at which the action of the verb takes place. So in the short you can learn that time is equal to tense and verb. So now tense is of three types. First of all, present tense, then past tense, then future tense. And this present tense is also having the four kinds. And that past tense is also having the four kinds. And the future tense is also having the four kinds. But before telling about those four tenses, I'll tell you basic three pillars of the grammar. That is, the three pillars means you can see that present tense, past tense and future tense. Before reading tenses, we should know the structure of tense. So these three pillars are sentence structure, forms of verb and grammatical person. Now sentence of structure means what? SVO. Then forms of verb means what? V1, V2, V3. And grammatical person means what? First person, second person, third person. So see, first of all, sentence structure. Sentence structure means what? Subject, object, verb. So whensoever we are studying, we are writing a sentence, we should know the structure of a sentence. That is SOV. So this SOV used in Hindi. Like मैं खाना खाता हूँ. तो मैं खाना खाता हूँ तो यहाँ पे क्या है? मैं क्या है? सब्जेक्ट. खाना क्या है? खाना क्या है? ऑब्जेक्ट. खाता हूँ वर्ब. तो ये जो सेंटेंस है ये हिंदी में अप्लाई हुआ है. हिंदी में जब हम लोग सेंटेंस लिखते हैं तो वी राइट SOV, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब. ठीक है. लेकिन जब हम लोग यही सेंटेंस को इंग्लिश में लिखते हैं, राम ईट्स अ फूड. ठीक है. तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो जाता है. देखिए अब हिंदी में मैं कैसे लिख रही हूँ? मैं खाना खाता हूँ. तो अब मैं खाना खाता हूँ हिंदी में तो लिखा गया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब. ठीक है. सब्जेक्ट हो गया मैं, खाना हो गया ऑब्जेक्ट और खाता हूँ हो गया वर्ब. लेकिन इंग्लिश में क्या हो गया? सब्जेक्ट आई, वर्ब ईट, ऑब्जेक्ट क्या हो गया? फूड. तो आई ईट फूड. तो ये क्या हो गया हमारा इंग्लिश में? SVO. So the structure of a sentence is SVO for English. Now second pillar was form of verb. So without knowing the form of verb, we will not able to convert the present tense into past tense into future tense. That will be not possible. So we should always remember the base root of the verb, that is V1, V2, V3. Base, past participle. That eat, ate, eaten. That eat is the present tense, ate is past tense and the eaten is past participle. Write, wrote, written. Same way we have to remember the forms of verb. Now grammatical person, we all know first person, second person, third person. So who is first person? First person speaker जो बोल रहा है, I, me, we. Second person जिससे हम बात कर रहे हैं, spoken to, you. You हो गया second person. And third person he, she, they, it. Okay. Now इसके अलावा जो लोग हैं वो हो गया he, she, they, it. वो हो गया third person. अब आ जाते हैं हम लोग टेंस पे. ठीक है. स्ट्रक्चर हो गया, वर्ब्स हो गया. ठीक है. एवरीथिंग वी हैव सीन. नाउ सबसे पहले प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, देन फ्यूचर टेंस. अब प्रेजेंट टेंस होता क्या है? व्हाट इज प्रेजेंट टेंस? ये तो जानना जरूरी है ना कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है. सो प्रेजेंट टेंस क्या होता है कि द वर्क विच इज हैपनिंग इन प्रेजेंट, जो अभी हो रहा है. ठीक है. दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस. और पास्ट टेंस ऑलरेडी हो चुका है. ठीक है. जो बीत चुका है, काम हो चुका है, दैट इज कॉल्ड पास्ट टेंस. एंड फ्यूचर टेंस जो होने वाला है, अभी हुआ नहीं है पर होने वाला है, दैट इज फ्यूचर टेंस. ठीक है. ये तो क्लियर हो गया. लेकिन अब प्रेजेंट टेंस भी चार तरह के होते हैं.
सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अब देखिए, अभी बहुत इजीली आई हैव टोल्ड ना, प्रेजेंट टेंस क्या होता है, जो अभी जो काम हो रहा है, ठीक है, प्रेजेंटली जो हम लोग काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो अब प्रेजेंट टेंस में अब सिंपल प्रेजेंट किसको बोलेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसको बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट किसको बोलेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किसको बोलेंगे, ठीक है। तो अब इसके लिए हम लोग देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग क्या पता करते हैं, ठीक है, हैबिट्स हो गया, रूटीन हो गया, फैक्ट्स हो गया, तो ये सब हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जैसे देख लीजिए, फैक्ट्स क्या हो गया, पृथ्वी गोल घूमती है, तो एक फैक्ट है। मैं पिज़्ज़ा खाता हूँ, हैबिट है। बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, हैबिट है। मैं स्कूल जाता हूँ, हैबिट है, सॉरी रूटीन है ना। बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, रूटीन है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस को पता करने के लिए हाउ वी विल आइडेंटिफाई दैट दिस सेंटेंस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब किसी भी सेंटेंस में जब लास्ट में ता हूँ, ठीक है, ता है, ती हूँ, ते है, जैसे राम खाता है, राम खेलता है, सीता गाती है, तो ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे मैं वीडियो देखता हूँ, तो अब देखता हूँ प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, ता हूँ। तो मैं वीडियो देखता हूँ, तो आई वॉच वीडियो, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, ठीक है। तो अभी हम लोग का क्या हो गया, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, यही है सेंटेंस का हमारा स्ट्रक्चर। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस, अभी मैंने ये भी बताया था कि ते हो, ती हो, ठीक है, ये सब भी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तुम खाना खाते हो, तुम स्कूल जाते हो, तुम पढ़ते हो, तो ये सब क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, ते हो। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यू ईट फूड। ओके, नाउ सी, it is very easy to identify simple present tense और present indefinite tense। किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ता हूँ आएगा, तो इट इज़ वेरी इजी टू आइडेंटिफाई। राम खाता है, सीता खेलती है, वे पढ़ते हैं, तो वो क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V5, V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, मैं हॉकी खेलता हूँ, तो मैं हॉकी खेलता हूँ, ता हूँ, यहाँ पे लास्ट में क्या है, ता हूँ। मैं स्कूल जाता हूँ, तो आई गो टू स्कूल। आई प्ले हॉकी, अब देखिए ये असर्टिव सेंटेंस है, आई प्ले हॉकी, ठीक है। अब इसका अगर हम निगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा, अब निगेटिव में भी सेम हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस, लेकिन सब्जेक्ट के साथ डू नॉट लगाना है, निगेटिव सेंटेंस में डू नॉट लगाना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ऑलवेज रिमेंबर द स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो निगेटिव बन गया, आई डू नॉट प्ले हॉकी। अब इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, अब मैं हॉकी खेलता हूँ, क्या मैं हॉकी खेलता हूँ, तो डू आई प्ले हॉकी, तो व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर, डू डज। ओके, डू डज, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस हॉकी मीन्स ऑब्जेक्ट। ओके, सो इट इज़ वेरी क्लियर। टू मेक असर्टिव सेंटेंसेस का हम लोग सिंपल प्रेजेंट में देख लिए, आई प्ले हॉकी, नेगेटिव सेंटेंस आई डू नॉट प्ले हॉकी, एंड इंट्रोगेटिव डू आई प्ले हॉकी। So very easy. So there is one note that we all know that in the third person singular number subject के साथ he, she, it या उनके नाम के साथ जो मुख्य जो मेन वर्ब होता है उसके साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और निगेटिव सेंटेंसेस में क्या करते हैं, आई वी यू के साथ थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ डू का यूज होता है, और ही शी इट किसी के साथ भी थर्ड पर्सन सिंगुलर में सब्जेक्ट के साथ डस का यूज होता है। वी ऑल नो दिस। ओके, नाउ कम टू द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब तो सिंपल प्रेजेंट टेंस देख लिया हम लोग, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, अब इसको कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। अब देखिए, इसको पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है। अब किसी भी सेंटेंस के लास्ट में राम खा रहा है, सीता पढ़ रही है, वो सो रहे हैं, वह खेल रहा है, ठीक है। अभी किसी के सेंटेंस में लास्ट में जब रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आएगा, तो हम लोग समझ जाएंगे कि काम हो रहा है, द वर्क इज गोइंग ऑन,
वर्क अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। राम जो था वो खेल रहा है अभी तक, ठीक है, खेल चुका नहीं है, ऑलरेडी इज प्लेइंग। राम हॉकी खेल रहा है, ठीक है। तो अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, V4 मीन्स ING फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इसमें क्या हो जाएगा, आई एम प्लेइंग हॉकी। तो प्लेइंग क्या है, V4 है, ठीक है। तो आई एम प्लेइंग हॉकी असर्टिव सेंटेंस हो गया। अब इसी सेंटेंस का हमको नेगेटिव बनाना है, तब कैसे बनेगा इसका नेगेटिव, मैं हॉकी नहीं खेल रहा हूँ, तो आई एम नॉट प्लेइंग हॉकी। तब इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ अब इसी का इंट्रोगेटिव देखेंगे, सेम सेंटेंस इंट्रोगेटिव। क्या मैं हॉकी नहीं खेल रहा, क्या मैं हॉकी खेल रहा हूँ, तब क्या हो जाएगा, एम आई प्लेइंग हॉकी। सो वेरी इजी टू मेक द नेगेटिव एंड टू मेक द इंट्रोगेटिव। अब निगेटिव सेंटेंस को बनाते समय ये जो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज होता है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब का यूज सबसे पहले होता है, ठीक है। नाउ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानने के लिए ये जो काम हो रहा था कंटिन्यूस टेंस में, ये यहाँ खत्म हो चुका है, काम हो चुका है। सीता खेल चुकी है, सीता पढ़ चुकी है, मैं हॉकी खेल चुका हूँ। तो अब किसी भी सेंटेंस में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ आएगा, मीन्स द वर्क गॉट कंप्लीटेड, ऑलरेडी द वर्क इज डन। तो जो खेल रहा था वो खेल चुका है, उसका काम फिनिश्ड हो गया, तो वो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट में ही, आज में ही ये बात हो रही है, काम तो हो गया है पर काम आज में ही हो गया है, इसको पास्ट में नहीं ले जाएंगे, ठीक है। सेम डे द वर्क इज फिनिश्ड। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं हॉकी खेल चुका हूँ, तो आई हैव प्लेड हॉकी। राम पढ़ चुका है, राम हैड प्लेड, राम हैव रेड। मैं खा चुका हूँ, तो आई हैव इटन। ओके, अब इसी का जब नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, मैं हॉकी खेल चुका हूँ, आई हैव नॉट, मैं हॉकी नहीं खेल चुका हूँ, आई हैव नॉट प्लेड हॉकी। तो अब इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी का जब इंट्रोगेटिव चेंज करेंगे, क्या मैं हॉकी खेल चुका हूँ, क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। तो हैव आई प्लेड हॉकी, वेरी नाइसली वी कैन मेक दिस, हाउ वी विल मेक, सी। अब नेगेटिव सेंटेंस जब हम लोग बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट का यूज करेंगे, और जब हम लोग इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट का V3 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर द फैक्ट्स। नाउ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हाउ वी विल नो दैट द सेंटेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसको पहचानने के लिए जो भी हमारा सेंटेंस का लास्ट वर्ड होगा वो होगा से रहा था, से रही है, से रहा हूँ, से रही हो, ठीक है। वह सुबह से पढ़ रहा है, वह सुबह से खेल रहा है, वह शाम से पढ़ रहा है, सोमवार से वर्षा हो रही है। तब जिस भी सेंटेंस में हो रहा है, हो रही है, ठीक है, से हो रहा है, से हो रही है, तो उसको हम लोग कहेंगे कि प्रेजेंट टेंस में ही ये हो रहा है, ठीक है। तब इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, और टाइम के लिए हम लोग सिंस फॉर का यूज करते हैं, ठीक है। अब मैं सुबह से हॉकी खेल रहा हूँ, तो आई हैव बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। तो मैं सुबह से हॉकी खेल रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पे सिंस लगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है इसलिए सिंस लगा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसी का नेगेटिव जब बनाना होगा तो हम नेगेटिव कहाँ लगाएंगे, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से हॉकी नहीं खेल रहा हूँ, ठीक है। तो आई हैव नॉट बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। अब क्या मैं सुबह से हॉकी खेल रहा हूँ, तो हैव आई बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। सो आई हैव मेड द इंट्रोगेटिव ऑल्सो। सो सिंस जो है हम हमेशा एग्जैक्ट टाइम के लिए लगाते हैं। अब सुबह से, शाम से, पिछले रात से, पिछले दिनों से, ठीक है, मार्च से, 2001 से, 2008 से, तो जब ये रहेगा तो हम हमेशा भी सिंस का यूज करते हैं, ठीक है।
अब देखिए, अब आ जाते हैं हम लोग पास्ट टेंस पे। अब पास्ट टेंस क्या होता है? बीता हुआ कल। अभी तो आज की बात हो रही थी, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही थी, लेकिन जो समय बीत चुका है, ठीक है, जो ऑलरेडी वो काम हो चुका है, ठीक है, तो वो हो गया पास्ट टेंस। अब इसका भी 4 फॉर्म है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम लोग देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। तब इसको कैसे पहचानेंगे हम लोग? अब जब किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आएगा आ, था, ठीक है, ई आदि आएंगे, तो हम लोग समझ जाएंगे राम खेला था, राम पढ़ा था, राम स्कूल गया था, ठीक है। तो वो पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो उसका स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं हॉकी खेलता था, तो आई प्लेड हॉकी। मैं पढ़ता था, आई रेड। मैं खाता था, आई एट। ओके, तब इसमें हम लोग कैसे लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी का जब हम निगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? आई डिड नॉट प्ले हॉकी। मैं हॉकी नहीं खेलता था, तो आई डिड नॉट प्ले हॉकी। तो आई सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसी का जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे, डिड आई प्ले हॉकी, क्या मैं हॉकी खेलता था, तो क्या हो जाएगा? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। हमेशा याद रखना है वर्ब का V1 यूज हम लोग कर रहे हैं, V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब इस टेंस में निगेटिव बनाएंगे या फिर इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो सेंटेंस के जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें हम लोग डिड का यूज करेंगे, ठीक है। नाउ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए, पास्ट की ही बात हो रही है, लेकिन पास्ट में ही वो काम हो रहा है, ठीक है। अब पास्ट में ही वो काम हो रहा था, तब किसको पहचानेंगे कैसे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है? तो राम पढ़ रहा था, सीता खेल रही थी, मैं स्कूल जा रहा था, ठीक है। तो ये पास्ट टेंस की बात हो रही थी, रहा था, रही थी, रहे थे। जब किसी भी सेंटेंस के लास्ट में रहेगा रहा था, रही थी, रहे थे, तो वो कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो अब इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म हो जाएगा? ठीक है, V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं हॉकी खेल रहा था, ठीक है, पास्ट टेंस की बात हो रही है, मैं हॉकी खेल रहा था, पर काम तो हो रहा था ना, कंटिन्यूअस टेंस है, तो क्या हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई वॉज प्लेइंग हॉकी। अब इसी का जब नेगेटिव बनाएंगे, ठीक है, आई वॉज नॉट प्लेइंग हॉकी, मैं हॉकी नहीं खेल रहा था, तो आई वॉज नॉट प्लेइंग हॉकी। अब इसका जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे सेम सेंटेंस का, क्या मैं हॉकी खेल रहा था, तो वॉज आई प्लेइंग हॉकी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग कैसे बनाए इसको? अब देखिए, आई या ही शी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सब्जेक्ट के साथ वॉज लगता है, ठीक है, और वी यू दे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ वर लगता है, हम लोग सब जानते हैं, ठीक है। निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सेम बाकी हम लोग यूज करते हैं। अब आ जाते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब पास्ट में ही वो काम हो चुका था, ठीक है। अब किसी भी सेंटेंस के लास्ट में चुका था, चुकी थे, चुके थे होगा। वह पढ़ चुका था, वह खेल चुकी थी, वह खा चुका था, वह सो चुका था, ठीक है, वह काम हो चुका था। तब ये सेंटेंस क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। तो अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हमेशा याद रखना पास्ट टेंस में हम हैड का ही यूज करेंगे, ठीक है। तो अब हैड का यूज कर रहे हैं और उसके साथ V3 लगा रहे हैं। ऑलवेज रिमेंबर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैं हॉकी खेल चुका था, तो आई हैड प्लेड हॉकी, ओके। मैं आम खा चुका था, आई हैड ईटन मैंगो, ठीक है। अब इसी का जब हम लोग नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? क्या मैं हॉकी नहीं खेल चुका था, आई हैड नॉट प्लेड हॉकी। अब जब इसी का इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? क्या मैं हॉकी खेल चुका था, हैड आई प्लेड हॉकी, ओके। सो अब इसी को देखिए, इसके साथ हम लोग क्या करते हैं? सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड का ही यूज होता है, ठीक है। निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए और बाकी सब वैसे ही यूज करते हैं, ठीक है। नाउ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को पहचानेंगे कैसे कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है? तो इसको पहचानने के लिए से रहा था, से रही थी, से रहे थे। अब किसी भी सेंटेंस के लास्ट में से रहा था, से रही थी, से रहे थे से होगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। ठीक है, वह सुबह से खेल रहा था, ठीक है, वह सुबह से पढ़ रहा था, वह शाम से सो रहा था। तो इसमें क्या हो रहा था? हो रहा था, से हो रही थी, तो ये हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसका हमें कैसे लिखेंगे इसका स्ट्रक्चर? तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो अभी सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट और इसके साथ टाइम दिया हुआ है ना, सुबह से, शाम से, दोपहर से, तो सिंस फॉर टाइम के हिसाब से हम लोग लगा लेंगे। ठीक है, अब मैं सुबह से हॉकी खेल रहा था, तो आई हैड बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। अब इसी का जब हम लोग नेगेटिव बनाएंगे, मैं सुबह से हॉकी नहीं खेल रहा था, तो आई हैड बीन नॉट प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। तो आई हैड नॉट बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। अभी इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट एंड सिंस फॉर जो दिया है वो लगाएंगे। ठीक है, अब जब इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे, क्या मैं सुबह से हॉकी खेल रहा था, तो हैड आई बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग, तो क्या लगेगा? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अब सभी जितना भी इसमें ये है, देखिए आप नोट में यहाँ पे सभी सब्जेक्ट, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का यूज़ करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट बीन का यूज़ किए हैं, और जब इंट्रोगेटिव है तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन का यूज़ किए हैं। ठीक है, नाउ कम टू द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज फ्यूचर टेंस? जो काम होने वाला है। ठीक है, अभी हुआ नहीं है, होगा भविष्य काल में, अभी हुआ नहीं है, होगा भविष्य काल में, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस। तो सबसे पहले देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या है? अब कोई भी सेंटेंस जिसके लास्ट में गा, गे, गी आएगा, उसको हम लोग समझ जाएंगे वो खेलेगा, वह पढ़ेगा, वह पटना जाएगा, वह पटना से आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया। पटना जाएगा, वह खेलेगा, वह पढ़ेगा। ठीक है, तो इसका क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं हॉकी खेलूंगा, तो आई शैल प्ले हॉकी। अब इसी का जब नेगेटिव बनाएंगे तो मैं हॉकी नहीं खेलूंगा, तो आई शैल नॉट प्ले हॉकी। ठीक है, अब इसी का इंट्रोगेटिव देख लीजिए, क्या मैं हॉकी खेलूंगा? शैल आई प्ले हॉकी। ठीक है, सो हाउ इजीली वी कैन मेक द इंट्रोगेटिव, नेगेटिव एंड असेटिव। ओके, अब देखिए आई और वी के साथ शैल लगता है, हेल्पिंग वर्ब लगता है। ठीक है, और विल हमेशा भी, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का यूज हम लोग कब करते हैं? ही, शी, इट के साथ। अब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, व्हाट इज फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस एंड हाउ वी विल आइडेंटिफाई द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को पहचानने के लिए क्या होता है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अब ये पढ़ रहा होगा, वह खेल रही होगी, वह सो रही होगी, वह नाच रही होगी। ठीक है, अभी हो रही होगी, कर रही होगी। तो जब ऐसा किसी भी सेंटेंस के लास्ट में होगा तो वो हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अब उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अभी आप लोग देखेंगे कंटिन्यूस वो प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, कोई भी कंटिन्यूस टेंस हो, उसमें हम लोग V4 का ही यूज़ किए हैं। ठीक है, मैं हॉकी खेल रहा होऊंगा, मैं हॉकी खेल रहा होऊंगा, मैं पढ़ रहा होऊंगा, तो आई शैल बी प्लेइंग हॉकी। अब इसी का नेगेटिव बनाएंगे कि मैं हॉकी नहीं खेल रहा होऊंगा, तो आई शैल नॉट बी प्लेइंग हॉकी। क्या मैं हॉकी खेल रहा होऊंगा, तो शैल आई बी प्लेइंग हॉकी। तब इसका इंट्रोगेटिव हो गया। ठीक है, अब नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट बी, ठीक है, या विल नॉट बी
और सेज जैसे सेंटेंस होता है वैसे ही यूज़ करते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब शैल और विल, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस जो सेंटेंस है वैसे ही रहेगा, एनी चेंज। ओके, नाउ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस कैसे पता चलेगा हम लोग को? अब किसी भी सेंटेंस में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका हूँगा, ओके, वह खेल चुका होगा, वह सो चुकी होगी, वह खा चुका होगा, तो ये क्या हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर की बात हो रही है, भविष्य के बाद। वह आईएएस बन चुका होगा, ठीक है, तो ये फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, तो वहाँ पे हम लोग पहचानेंगे चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ठीक है। तो अब इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं हॉकी खेल चुका होऊंगा, तो आई शैल हैव प्लेड हॉकी। अब इसी का नेगेटिव देखिए कैसे बनेगा? मैं हॉकी नहीं खेल चुका होऊंगा, तो आई शैल नॉट हैव प्लेड हॉकी। अब इंट्रोगेटिव बनाएंगे, क्या मैं हॉकी खेल चुका होऊंगा? तो शैल आई हैव प्लेड हॉकी। सो व्हाट वी विल डू हियर? नेगेटिव सेंटेंस बनाने में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल नॉट हैव और शैल नॉट हैव का यूज करते हैं, और निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव का यूज करते हैं, ठीक है। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड द स्ट्रक्चर्स ऑल्सो आई एम टेलिंग, सो यू कैन नोट इट डाउन। Now future perfect continuous tense. This is the last tense of future tense. The future perfect continuous tense, that is how we will identify कि ये future perfect continuous tense है। तो इसको पहचानने के लिए इसका लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में क्या आएगा? से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, ठीक है। वह सुबह से हॉकी खेल रहा होगा, वह सुबह से पढ़ रही होगी, वह, ठीक है। तो अब इस किसी भी सेंटेंस में जब लास्ट में होगा से रहा होगा, से रही होगी, ठीक है, तो वो हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अब उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। और सिंस फॉर टाइम के लिए जैसे हम लोग यूज करते हैं, एग्जैक्ट टाइम के लिए सिंस यूज करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, मैं सुबह से हॉकी खेल रहा होऊंगा, तो आई शैल हैव बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से हॉकी नहीं खेल रहा होऊंगा, तो जब मैं सुबह से हॉकी नहीं खेल रहा होऊंगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस में आई शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। अब इसी सेंटेंस का जब इंट्रोगेटिव बनाना है हमें, क्या मैं सुबह से हॉकी खेल रहा होऊंगा, तो अब हो जाएगा इंट्रोगेटिव में शैल आई हैव बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। ओके, नाउ अब देखिए, नेगेटिव सेंटेंस जब भी हम बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस विल, शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन का यूज करेंगे, और जब भी हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन का यूज करेंगे, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इजीली वी हैव रेड हियर। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ा? प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं इस स्क्रीन पे, आप यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर भी है, एग्जाम्पल भी है, एवरीथिंग इज गिवन हियर, एंड वी केम टू द कंक्लूजन दैट पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट perfect tense, past perfect continuous, same way future simple future, then we read future continuous, future perfect and future perfect continuous. Like this, I think that you all can note it down from here, the tense, structure and example. So thank you children for watching my video. Thank you.